Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, Rise and Spread of Islam. Before that, we have discussed Rise and Spread of Christianity. In that chapter, we have learned about Christianity, and in this chapter, we will discuss about a new religion, Islam. Actually, Islam is not a new religion. I'm talking about the chapter, new chapter. Okay, before we start our chapter, I want to give you some basic information related to Islam. Okay, which is not given in our book, which is given in our book, but something I want to tell you, discuss with you. Okay, so rise and spread of Islam. आप सभी को पता है कि इस पूरी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं. देयर आर मैनी रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड, मैनी, but the major religions are about Christianity we have discussed in last chapter, and one more is there, Islam is there, and Hinduism is there, Buddhism is there, Jainism is there, many other religions are there which exist in this world. Okay, and Islam is a world's major religion. Like if we will talk about the percentage of the follower, then we can say that the Islam is having many followers, means but the percentage of the followers of Islam is very high. So it is a major religion of the world, and it developed in the Middle East during medieval period. First Christianity came into the existence. After that, Islam came into the existence, but the period is same, medieval period. Okay, and it developed in the Middle East, in Middle East area. Okay, uh, if we are talking about Islam, then event is there, one important event is there, which is very important. 570 C, 570 C is very important year for Islam religion. Why it is important? Because an event that radically altered the course of world history. एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गया. What was that event? That event took place in Mecca, a small town in Arabia. And what was that event? That event was the birth of Prophet Muhammad. 500 सी को इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि उस दिन, उस ईयर में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज कर देता है. ये घटना मक्का में हुई थी, और मक्का कौन सी जगह है? ये अरेबिया का एक छोटा सा शहर है. और वो जो घटना थी, वो जो इवेंट था, जो बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो है द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. मोहम्मद कौन है? Who is Muhammad? Muhammad is the founder of Islam. Okay, he was the founder of Islam. So these are the basic things. Many things are there which we will discuss. Okay. Now Islam. Sorry, wait a minute. Islam. Islam means what? Islam means submission to the God और complete surrender to the God. इस्लाम जो रिलीजन है उसका जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है, उसका मतलब होता है सबमिशन टू गॉड और टोटल सरेंडर टू द गॉड. मीन्स अपने आप को पूरी तरीके से गॉड के पास सबमिट कर देना, मतलब उनको समर्पित कर देना अपने आप को. ठीक है, और यहाँ गॉड का नाम क्या है? गॉड अल्लाह होते हैं यहाँ पे. ठीक है, जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं उनको कहते हैं मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ अल्लाह. वह इंसान जो अपने आप को अल्लाह की इच्छा की तरफ अपने आप को समर्पित कर दिया है, अल्लाह की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दिया है. ठीक है, दैट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ मुस्लिम्स. एंड what do you mean by prophet? Prophet means the messenger or representative of God.
वो इंसान जो कि भगवान का या तो मैसेंजर है या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव है। इस्लाम इज़ अ मोनोथेइस्ट रिलीजन। यहाँ इसमें सिर्फ एक ही गॉड को वर्शिप की जाती है, एक ही गॉड को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और उस गॉड का नाम है अल्लाह। हु इज़ अल्लाह? अल्लाह मीन्स द क्रिएटर, द सस्टेनर, द रिस्टोरर। वह जो कि जिसने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है, जो इस दुनिया को चलाता है और इसमें जो कुछ भी परेशानियाँ आती हैं उसको वापस से ठीक करता है। तो अल्लाह वही है। ओके। इस्लाम। नाउ व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम, Prophet declared that Allah was the one and only God and the Muhammad was his prophet. इस्लाम का जो जन्म हुआ उसके शुरुआती काल में प्रोफेट जो मोहम्मद थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अल्लाह ही है जो वन एंड ओनली गॉड है, उसके अलावा कोई दूसरा गॉड नहीं है, और मोहम्मद जो है वो उनके प्रोफेट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए, इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट दैट अल्लाह वॉज द वन एंड ओनली गॉड, दैट मीन्स दे आर मोनोथेइस्ट। मोनोथेइस्ट मीन्स द रिलीजन who believes only in one God. What was the teaching of the Prophet? That was recorded in the Quran. Quran is the holy book of Islam. And Muslims believe that God revealed the Quran to Muhammad through angel Gabriel. यहाँ spelling mistake है, Gabriel. Okay. Now we will discuss the chapter with the help of the book. Okay. It is my humble request to all of you to read the chapter at least once by your own self. Okay, it will help you to understand the chapter well. Islam as a religion is based on the monotheist religious tradition that originated and spread from Middle East in the 7th century. See, the followers of Islam are known as Muslim, meaning one who submits to the will of Allah. The Muslims believe that God revealed the Quran, the holy book, to the Muhammad through angel Gabriel. इस्लाम एक मोनोथेइस्ट रिलीजन है जो कि मिडिल ईस्ट में ओरिजिनेट हुआ था 7th सेंचुरी में, और जो इस्लाम्स के फॉलोवर होते हैं उनको कहा जाता है मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब होता है वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ अल्लाह। ओके। मुस्लिम्स का ये बिलीफ है कि गॉड ने जो है कुरान को रिवील किया, मोहम्मद को रिवील किया थ्रू द एंजल गैब्रियल। ओके। प्री इस्लामिक टाइम्स कंडीशन इन सऊदी अरेबिया। प्रोफेट मोहम्मद के बर्थ से पहले का कंडीशन क्या था सऊदी अरेबिया का, दैट वी विल डिस्कस इन दिस हेडिंग। बिफोर द बर्थ ऑफ मोहम्मद, Arabia was inhabited by the nomads called Bedouin. Arabia was at the time an economically underdeveloped region. These nomads were divided into several tribes which moved from place to place in search of food and water. They often fought among themselves. Muhammad belonged to the powerful Quraysh tribe. Thus, before the birth of Islam, the Arabs lacked a unified religious system. They worshipped large number of gods. Each tribe had its own god, generally symbolized by sacred stones. In Mecca, there was an ancient square shrine called Kaaba. It housed the idols of 360 gods and goddesses. The Kaaba served as a holy place of annual pilgrimage for the Arabic tribes. Muhammad was born in 570 AD in the Arabian city of Mecca in Saudi Arabia. In 1610 AD, he had a spiritual experience and became a prophet. He united the different tribes of Arabia who used to fight with each other under the banner of Islam. The word Islam means submission or complete surrender to God. Arabic word of God
इज़ अल्लाह। ओके। मोहम्मद के जन्म से पहले अरेबिया में जो कई तरह के नोमिड्स ट्राइब्स रहते थे, उसमें से कुछ ट्राइब्स थे वो बेडोइन थे। ठीक है। और ये जो पूरा अरेबिया का रीजन था वो बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप था। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे वो लोग। और इस एरिया में बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक फूड और वाटर के सर्च में घूमते रहते थे और अक्सर एक दूसरे से लड़ते भी थे। मोहम्मद जो थे वो खुरैश ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो इन सारे ट्राइब्स में से एक ट्राइब था खुरैश, उसमें से उससे वो मोहम्मद जी बिलोंग करते थे। उनके बर्थ से पहले, इस्लाम के बर्थ से पहले अरब में कोई भी कॉमन रिलीजियस सिस्टम नहीं था जो कि उनको एक यूनिफाइड कर पाए, जो उनको एक साथ जोड़ पाए। हर ट्राइब का अलग अलग रिलीजन था और हर ट्राइब का अलग अलग गॉड थे और वो उसको पवित्र पत्थर के रूप में पूजते थे। ठीक है। मक्का में एक एंशिएंट स्क्वायर श्राइन है जिसको काबा कहते हैं और उसमें लगभग लगभग 360 गॉड एंड गॉडेस के मूर्तियाँ लगी हुई थी। ठीक है। काबा जो है वो एक जो अरेबिक ट्राइब्स थे उनका एक बहुत ही होली प्लेस था और वह जहाँ पे वो जो एनुअल पिलग्रिमेज था उनका, जहाँ पे साल में एक बार वो जाके पूजा करते थे। मोहम्मद जो हैं वो 570 एडी में बॉर्न हुए। कहाँ बॉर्न हुए थे? अरेबिया के मक्का शहर में। ठीक है। और जब वो 40 साल के हुए, दैट मीन्स इन 610 एडी में उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ और वो प्रोफेट बन गए। उसके बाद उन्होंने जो है डिफरेंट ट्राइब्स को ऑफ अरेबिया को यूनाइट किया और उन सब को जो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे उन सबको एक ही रिलीजन के अंदर लाया जिसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम की मीनिंग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसका मतलब होता है सबमिशन टू गॉड और कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। ओके। अरेबिक वर्ड में गॉड को अल्लाह कहते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैरा। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैरा। Early life of Muhammad. Muhammad was orphaned at a very young age and brought up by his uncle Abu Talib. As a teenager, Muhammad started accompanying his uncle on trade travels to Syria. He became popular as a sincere and honest person. After a few years, a wealthy widow, Khadija, employed him as an agent to travel with her trade caravans. Muhammad returned with huge profits from these trade travels. Impressed by his work and good character, Khadija sent a marriage proposal to Muhammad, which he accepted. He was married at the age of 25. मोहम्मद जो थे वो बहुत कम एज में जो है उनके माता पिता गुजर गए थे और उनके गुजरने के बाद उनके अंकल ने, अबू तलीब ने उनकी देखभाल की। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने अपने अंकल के साथ मिलकर ट्रेड ट्रैवल करना शुरू किया सीरिया में और अपनी ऑनेस्टी की वजह से वो बहुत पॉपुलर, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी की वजह से बहुत पॉपुलर हुए। कुछ साल बाद एक बहुत ही अमीर विडो महिला थी खादिजा, जिन्होंने उनको अपने यहाँ काम पे रखा। उनका काम था जो उनका ट्रेड कारवां जाता था खादिजा का, उसके साथ एजेंट के तौर पे ट्रैवल करना। मोहम्मद जब वहाँ से लौटे, अपने ट्रेड कारवां के साथ ट्रैवल करके जब लौटे तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट कमाए और कमा कर ला कर दिया, बहुत प्रॉफिट कमाया। और उसकी इस अच्छे काम और अच्छे कैरेक्टर की वजह से खादिजा जो है बहुत इम्प्रेस्ड हुई और उसने जो है मैरिज का प्रपोज़ल मोहम्मद को भेजा, जो मोहम्मद ने एक्सेप्ट भी कर लिया और 25 इयर्स की एज में उन्होंने खादिजा से शादी कर ली। ओके। As a young man, Muhammad had come in contact with the Christians and Jews during his trade travels. He was impressed by their monotheist
religious beliefs and practices. But he did not like idol worship and other polytheist religious practices followed by the people of Arabia. With the passing time, Muhammad turned to spiritualism and started going to the hills around Mecca for meditation. During one such meditation in cave Hira in 610 AD, Muhammad, then 40, had a vision of angel Gabriel giving him the message of God. After a series of revelation, Muhammad formed a new view about religion whose main points were: there is only one God who is Allah. People must submit to the will of Allah. Allah has chosen Muhammad to be his messenger or prophet. ओके, बहुत जब मोहम्मद यंग थे तो वो जब अब डिफरेंट ट्रेड ट्रैवल्स की वजह से इधर उधर जाया करते थे, तो वो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के कांटेक्ट में आए और वो उनके रिलीजियस बिलीफ से काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि वो सिर्फ एक ईश्वर को मानते थे और उनके प्रैक्टिसेस से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्हें मूर्ति पूजा और कई ईश्वर की कई ईश्वर की जो कॉन्सेप्ट है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसको पसंद भी नहीं करते थे। और जिस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, जिस रीजन से वो बिलोंग करते थे, मीन्स अरेबिया, वहाँ पे ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम था कि हर ट्राइब का अलग अलग भगवान होते थे, हर अलग अलग गॉड होते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहम्मद जो है वो थोड़े स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते गए और उसकी वजह से उन्होंने जो है मेडिटेशन करना शुरू किया। डिफरेंट हिल्स पे जाते थे, मक्का के आसपास में जो भी डिफरेंट हिल्स होते थे वहाँ जाके वो मेडिटेशन करते थे। उसी दौरान में किसी एक मेडिटेशन के समय जो उन्होंने हीरा केव में किया इन 610 AD, उनको कुछ विज़न मिला और वो विज़न उनको किसने दिया? एंजल गैब्रियल के थ्रू मिला और एंजल गैब्रियल ने उन्हें गॉड का मैसेज दिया। कई इस तरीके के रिविलेशन के थ्रू मोहम्मद ने एक अपना व्यू बनाया रिलीजन को लेकर, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, देयर इज़ ओनली वन गॉड हु इज़ अल्लाह। सिर्फ एक ही ईश्वर है जो है अल्लाह। पीपल मस्ट सबमिट टू द विल ऑफ अल्लाह, और लोगों को अपने आप को समर्पित करना चाहिए अल्लाह के प्रति। अल्लाह हैज़ चूजन मुहम्मद टू बी हिज मैसेंजर और प्रोफेट। अल्लाह ने मोहम्मद को चुना है अपने मैसेंजर के तौर पे। एंजल गैब्रियल इज़ बिलीव्ड टू हैव विजिटेड मुहम्मद मैनी टाइम्स ओवर 23 years आफ्टर द फर्स्ट रिविलेशन एट केव हिरा। All the verses that Gabriel revealed to Muhammad are compiled in Quran. The Arabic word Quran means recitation or reading. एंजल गैब्रियल, ऐसा माना जाता है कि एंजल गैब्रियल जो है मोहम्मद से कई बार मिले। इवन जब उनको पहला रिविलेशन हुआ केव हीरा में, उसके 23 साल बाद, 23 years बाद तक भी एंजल गैब्रियल उनसे मिलते रहे और उन्हें बहुत सारे वर्सेस, बहुत सारे संदेश उन्होंने दिए। वो सारे संदेश कुरान में कंपाइल किए हुए हैं। कुरान मुस्लिम्स के होली बुक। कुरान का अरबिक मीनिंग होता है रेसिटेशन और रीडिंग, यानी पढ़ना। Opposition to the new religion. 3 years after receiving the first revelation, Muhammad started preaching his views about the new religion to the people of Makkah. Impressed by his preaching, many people converted to the new religion. However, the leading citizens of Mecca opposed Muhammad's idea of one God. At that time, the Kaaba was under the control of the Quraysh tribe to which Muhammad belonged. Muhammad wanted the Kaaba to be dedicated to the worship of only one God and removal of all idols from there. These ideas were rejected by Quraysh tribe. Besides, the wealthy Arabs merchant also feared huge losses due to the reduced number of pilgrims visiting the Kaaba
after the removal of the idols from there. Therefore, they forced Muhammad and his followers to flee to Medina in 622 AD. The migration of Muhammad to Medina is known as Hijrah. It marks the beginning of Muslim calendar Hijri. Okay? जब भी किसी नए चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। जब उनको फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ मोहम्मद को, उसके 3 साल बाद मोहम्मद ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया अपने नए रिलीजन के बारे में। मक्का में एक अलग अलग जगह जाकर वो लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेश से इम्प्रेस होके बहुत सारे लोग जो है वो नए रिलीजन को में कन्वर्ट हो चुके थे। हालांकि मक्का के जो मक्का के लीडिंग सिटीजन्स थे वो मोहम्मद के वन गॉड के कॉन्सेप्ट को आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे और उसका विरोध कर रहे थे। उस समय काबा जो है वो कुरैश ट्राइब से की कंट्रोल में था। कुरैश ट्राइब वही ट्राइब है जिससे कि मोहम्मद बिलोंग करते हैं। मोहम्मद जो वो चाहते थे कि वहाँ जितनी भी आइडल वर्शिप होती है, जो मूर्ति पूजा होती है, सब बंद हो जाए और जो डिफरेंट गॉड्स के और गॉडेस के जो स्टैचूज़ और जो आइडल्स लगे हुए हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन कुरैश ट्राइब ने इस चीज़ को जो है विरोध किया। ठीक है। और इसके अलावा जो अरब के बहुत वेल्दी मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनको इसकी वजह से बहुत सारे लॉस होने की गुंजाइश थी, क्योंकि अगर जब आइडल्स सारे रिमूव हो जाएंगे तो उसको पूजा पाठ करने वाले लोगों की आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेड होता था काबा में वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने मोहम्मद को फोर्स किया, उनको और उनके फॉलोअर्स को फोर्स किया कि वो मदीना शिफ्ट हो जाए। और इसकी वजह से मोहम्मद जो है अपने फॉलोअर्स के साथ 622 एडी में मदीना को शिफ्ट कर गए। उनके इस माइग्रेशन के इवेंट को हिजरा कहते हैं। हिजरा जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है इस्लाम रिलीजन में। हिजरा जिस साल हुआ उसी साल से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। इन मदीना मोहम्मद यूनाइटेड द वॉरिंग ट्राइब्स एंड वॉन्ट कंसिडरेबल सपोर्ट। जब वो मदीना पहुँचे तो उन्होंने जो वॉरिंग ट्राइब्स थे उन सबको एक किया और उनका सपोर्ट जीता। He had a band of faithful supporters who were ready to die for Islam. अब उनके पास एक ऐसी बैंड थी, जो एक ऐसी आर्मी थी जो कि उनके लिए कुछ भी कर सकती थी, इस्लाम के लिए कुछ भी कर सकती थी। They fought with the Meccan tribe for 8 years and finally conquered Makkah. उन्होंने जो है मक्कन ट्राइब से, इस पूरे बैंड ने जो है मक्कन ट्राइब से 8 साल तक लड़ाई लड़के मक्का को जीत लिया। मोहम्मद रिटर्न टू मक्का। देयर आफ्टर द पीपल ऑफ मक्का एक्सेप्टेड इस्लाम। इसके बाद मोहम्मद मक्का में रिटर्न हुए और वहाँ के लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। When Muhammad died in 632 AD in Medina, almost the entire Arabian Peninsula had accepted Islam. मोहम्मद 632 AD में ख़त्म हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। और जब वो ख़त्म हुए उस समय लगभग पूरे अरेबिया में इस्लाम फैल चुका था। Muhammad had succeeded in uniting the tribes of Arabia into a single religious polity. और इसके साथ ही जो मोहम्मद का सपना था कि पूरे अरेबियन ट्राइब्स को एक सिंगल रिलीजन में जोड़ के रखना, वो उनका सपना पूरा हो चुका था। 5 principles or pillars of Islam. Muhammad preached the observance of the 5 principles or pillars of Islam by Muslims. Muhammad preached the
observance of the five principles or pillars of Islam by Muslims. These are listed below. इस्लाम के 5 पिलर्स हैं जो मोहम्मद के द्वारा बताए गए हैं, जिसको 5 प्रिंसिपल्स भी कहते हैं और पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। पहला है शहादा, देयर इज़ ओनली वन गॉड और अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। शहादा का मतलब है कि एक ही ईश्वर है जो कि अल्लाह है और मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं, प्रॉफिट है। ठीक है। सेकेंड इज़ सलत, एवरी मुस्लिम मस्ट ऑफर प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे। नमाज़ पढ़ते हैं मुस्लिम, जिन उनके प्रेयर को वो नमाज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हर मुस्लिम को जो है दिन में कम से कम 5 बार जो है प्रेयर करना, नमाज अदा करना चाहिए। स्वाम, Muslims must observe fast from dawn to dusk in the holy month of रमज़ान। जब रमज़ान का महीना आता है तो मुस्लिम्स को जो है भोर से लेके शाम तक फास्ट करना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, जिसको रोज़ा कहते हैं। ज़कात, Muslims must give a certain portion of their wealth as alms to help the poor। इसके हिसाब से मुस्लिम्स को जो है अपनी जो भी उनकी कमाई है, अपनी जो भी उनकी संपत्ति है, उसका कुछ एक पोर्शन, कुछ एक सर्टेन अमाउंट गरीबों को दान देना होगा। हज, मुस्लिम्स मस्ट गो ऑन द पिलग्रिमेज ऑफ और हज टू काबा इन मक्का एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। मुस्लिम्स को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा करनी होगी, जो कि काबा में के मक्का में है। ठीक है। सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। लाइक दिस वी हैव completed the chapter. No, not completed the chapter, completed a topic actually, and rest of the topic we will complete in the next video. Thank you for watching this video.